یہ اگر اس کو کوئی غلط فہمی ہے نا عالیہ حمزہ صاحبہ کو کہ یہ مجھے خاموش کرا لیں گی تو اپنی یہ جو غلط فہمی اپنی جیب میں رکھیں. میں آپ کا لحاظ کر رہی ہوں بیکاز میں دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ ہے یہ جو پڑھی لکھی اپنے آپ کو منہ ڈنگا کر لینا بی بی مجھ سے آپ شین اور میم کے بیچ میں یہ ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے رہے گی کہ ویسے یہ کچھ نہیں کر سکی تو آج خاموش 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 بہیو یور سیلف خاموش. یہ دیکھیے میں اسی لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہی تھی. آپ جو کل کو کہیں نواز شریف اور شہباز شریف اس کا مائک بند کیجئے آپ تو ہر پارٹی اس کا مائک بند کیجئے. چلیے ہمیں خارجہ پالیسی بتانے ان کی گھر میں ان کو باہر کیا ان کی گھر میں کوئی اوقات نہیں ہے. ان کے بارے میں جو کارٹون چھپتے ہیں ان کے بارے میں جو ایڈیٹوریل کے اوپر میں آپ سے مشورہ نہیں مانگا. ملک صاحب مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے. یہ طریقہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح مجھے نہیں چپ میں نے آپ کو شو سے پہلے کہا تو ہوتے ہیں وہ چمچے ہی تو ہوتے ہیں بات کرنا پسند نہیں کرتا. اور اس خاتون کی کریڈیبلٹی پلیز دکھائیں کہ یہ وہ عورت ہے جس نے زرداری پارٹی کے اندر بیٹھ کر نواز شریف کو دعوت اپنے بہت سارے ایشوز ہیں جس کے فائنینشیل بھی ایشوز ہیں جس نے جھوٹ بولا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں جواب دو جا کے تمہاری کریڈیبلٹی کیا ہے. جس عورت کو زرداری کی پارٹی میں بیٹھ کے نواز شریف کو جو غدار کہتی رہی وہ اب اس پارٹی جو اپنی شادیاں تک چھپاتا ہے جس کو الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا ہے وہ مرد مجھے کریڈیبلٹی بتائے گا. السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ صرف بحث نہیں بلکہ ایک ایسا تصادم ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. لفظوں کی جنگ اور غصے کی انتہا اور ایسے لمحات جو عام طور پر کیمرے میں قید نہیں ہوتے. ایک طرف فیصل واڈا اور دوسری طرف عظما بخاری جہاں بات اختلاف تک نہیں رہی بلکہ پورا ماحول ہی گرم ہو گیا. تلخ جملے تیز لہجہ اور وہ لمبا جب صورتحال قابو سے باہر ہوتی گئی. لیکن یہیں کہانی ختم نہیں ہوتی کیوں نہ کہ اگلے ہی کلپ میں ایک اور بڑا ٹکراؤ آپ کا انتظار کر رہا ہے جس میں عالیہ حمزہ اور عظما بخاری آمنے سامنے آ گئی. ایسی بحث شروع ہوئی جس میں الزامات نہ کوئی جھکا بلکہ لائیو شو میدان جنگ بن گیا. آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمین کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. یہ آپ سے ملنے والی محبت اور پیار ہے. آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار. اس کو غلط فہمی ہے نا عالیہ حمزہ صاحبہ کو کہ یہ مجھے خاموش کرا لیں گی تو اپنی یہ جو غلط فہمی اپنی جیب میں رکھیں. میں آپ کا لحاظ کر رہی ہوں بیکاز میں دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ ہے یہ جو پڑھی لکھی اپنے آپ کو منہ ڈنگا کر کے انگریزی بول رہی تھی ان کو مینرز ہی نہیں ہے کہ کسی کی بات سننے. جب آپ کو بڑا شوق ہے سوال پوچھنے کا پھر جواب بھی لے لینا بی بی مجھ سے آپ. شین اور میم کے بیچ میں یہ ہے نا شین یہ میم کیا بتتا ہے شیم. ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کب سے لگی ہوئی ہیں شین میں سے میم نکلے گی فلانی نکلے گی اپنی پتہ کرو. وہ جس کی آپ نمائندہ تھی نا وہ جہانگیر ترین جو پی ٹی آئی کا ٹی تھا وہ بھاگ گیا وہ نکل لیا اس کی فکر کرو. ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم خود کر لیں گے. یہ تمہاری حسرت ہی رہے گی کہ ویسے یہ کچھ نہیں کر سکی تو آج خاموش 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 بہیو یور سیلف خاموش. یہ دیکھیے میں اسی لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہی تھی. آپ جو کل کو کہیں نواز شریف اور شہباز شریف اس کا مائک بند کیجئے. آپ تو ہر پارٹی اس کا مائک بند کیجئے. عالیہ صاحب ایسا نہ کریں پلیز. اس کا مائک بند کیجئے. میں نے آپ کی بات میں رہتے ہیں یہاں پہ سب نے آپ کی بات سنی ہے. ان کا وقت ہے انہیں بولنے دیں. عالیہ صاحب انہیں بولنے دیں. تو ان کو کیا کیا کہتی رہی عالیہ صاحب ان کو بولنے دیں. دیکھیں پورا وقت نمائندہ بنی ہوئی ہیں اور آج اگر آ کر شہباز شریف نے اپنا نمائندہ الگ کر لیے تو آپ کا کیا پرابلم ہے؟ اب ان کو بولنے دینا. عالیہ صاحب ان کو بولنے دیں. وقت آپ کو میں نے پورا دیا. کس کی بھی ہے عالیہ صاحب پلیز پلیز کوئی بات نہیں. وہ کس کی بھی ہے وہ کس کی بھی ہے. ان کو پیٹرول کی قیمت بھی پلیز پلیز آپ بھی نہیں آپ کو خاموش تو کرائیے نا. آپ ان کا مائک بند کیجئے. دس از نو وے. نہیں دس از نو وے. آپ سے میری گزارش وہ ذاتیات پہ گئی ہے نا وہ ذاتیات پہ گئی ہے. نہیں یہ نہیں ہوتا. یہ ہم نے بہت برداشت کر لیا. اب جو یہ کریں گی ویسے اس سے زیادہ برداشت نو. یہ کوئی طریقہ میں نے اسی لیے کہا تھا جاہل خاتون کے ساتھ نہ بٹھائیں. ان کو بیچاری کو اس بیچاری کو اٹینشن سیکر ہے. اس اٹینشن سیکر کو ہمارے ساتھ بٹھا کے آپ اس کا پروفائل بنانا چاہ رہے ہیں. اب کیا کریں میں اور قادر مندوخہ شرم سے ڈوب ہی مر سکتے ہیں. نہیں نکتے پہ کیا آؤں میں اس خاتون کے ساتھ اس کا مائک بند کیجئے. پہلے آپ اس کا مائک بند کیجئے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یو شوڈ انٹروین. اس کا مائک بند کیجئے. اس کا مائک بند کیجئے. اس کا مائک بند کیجئے. اگر اس کو مینرز نہیں ہے اگر یہ کچی جماعت سے اٹھ کے آ گئی ہے اس کو تمیز نہیں ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر دوسروں کی اگر بات کرنے کا بڑا شوق ہے جواب لینے کی ہمت نہیں ہے. اس کا مائک بند کیجئے. نہیں بات غلط ہے. آپ اگر وہ چاچا کرنا بند نہیں کر رہی تو آپ کو ان کو بند کرنا چاہیے نا. آپ کو ان کو انٹروین کرنا چاہیے. مائک بند کر دیا. پلیز آپ اپنی جلدی سے نقطے پہ آئیں.
उनको गुजारिशों का असर नहीं होता, इन सबकी दवाइयां आगे पीछे हो जाती हैं, ये बेचारे सेंसेस में तो होते नहीं है, मैं क्या करूं। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है मेरे पास, जिसमें ब्लूमबर्ग ने, बाय द वे इसमें इंडिया हमसे ऊपर है 42 पे, पाकिस्तान 43 पे, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो कोविड के हवाले से उन्होंने पूरी दुनिया की शाया की है, पहली बात। दूसरी बात, असद उमर साहब का ये मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, जो उन्होंने कहा कि 18 अरब डॉलर जो है वो PMLN अपने दौरे हुकूमत में छोड़ के गई थी, और जब वो 6 महीने बाद उनको रुखसत फरमाया गया तो उस वक्त 8 अरब डॉलर जो है वो उस मुल्क में रह गए थे। अब मुझे ये बताइए, हमें जो है वो बातें करने वाली और वो जो है वो ये अपने गिरबान में तो झांके, जो कोरोना के पैसे खा गए हैं, जो कोरोना फंड खा गए हमें, जो हमें ज़कात और खैरात और उसके इसमें मिला था, इन्होंने वो भी नहीं छोड़ा। जो फॉरेन फंडिंग लेकर अपने ड्राइवर और PA और उसके नाम के ऊपर पिछले 7 साल से स्टे लेके बैठा है, वो हमें बताएंगे कि अमानत और जो है वो खयानत किसे कहते हैं। वो बताएगी हमें, जिसकी बाजी सिलाई मशीनें चलाती चलाती अरबपति बन के पूरी दुनिया में जो है वो बैठ गई। ये बताएगी हमें, जो 300 कनाल के फेक NOC के ऊपर बैठा हुआ महल बना के, वो बताएगा हमें। ऑडिटर जनरल ने कहा कोरोना के अंदर 3 अरब रुपए के एम्बेजलमेंट है, इसके ऊपर बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो लिया था, और जाहिर है इनकी रस्सी दराज है, इनको भी पूछा नहीं जाता। लेकिन उसके बाद जब सेक्रेटरी सेहत को बुलाकर कायमा कमेटी में नेशनल असेंबली के पूछा गया कि जिसकी डिटेल दें, तो उन्होंने कहा ना पूछे, हमारे फंड बंद हो जाएंगे। यही हरकत और यही तरीकाकार पंजाब में हुआ। पंजाब के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है कि हमारे पैसे खा गए, इन्होंने मशकूक और गलत दवाइयां खरीदी, इन्होंने गलत जो है वो पर्चियां काट के उसके अंदर पैसे खाए, और ये सब ऑडिटर जनरल कह रहा है इनके दौरे हुकूमत में, ये मैं नहीं कह रही, ये ऑडिटर जनरल कह रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो वो पर्चियां जो है ना, हम तो पर्चियां लेके जाते थे, एडा बड़ा पर्चा लेके जाते हैं, और कौन सी तकरीर बगैर पर्चे के की है। इमरान खान ने पर्चा लेके जाते हैं, फिर भी जर्मनी और जापान की सरहद मिल जाती है। पर्चा लेके जाते हैं, फिर भी पता नहीं चलता कि उसामा बिन लादेन को जो है वो किसने ठहराया हुआ था मुल्क के अंदर। पर्चा लेके जाते हैं, फिर भी पता नहीं चलता कि ISI जो है उसको जो है अलकायदा ISI ने बनाई थी। ये इमरान खान हमें खारजा पॉलिसी बताते हैं, और सबसे अच्छी खारजा पॉलिसी है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है वो घर बैठा रहता है और वो कहता है या धूप में गैरत जो है वो अपनी उसको धूप लगवा लो आधे घंटे के लिए, जुम्मे को खड़े होके, वो भी खत्म हो जाती है। और सलामती काउंसिल में ना अफगानिस्तान के इशू में इनको बुलाया जाता है, और ना कश्मीर के ऊपर 14 मुल्क ये इकट्ठे नहीं कर सकते रेजोल्यूशन फाइल करने के लिए। आई चली है हमें खारजा पॉलिसी बताने, इनकी घर में, इनको बाहर क्या, इनकी घर में कोई औकात नहीं है। इनके बारे में जो कार्टून छपते हैं, इनके बारे में जो एडिटोरियल छपते हैं इमरान खान के, वो मैं आपको सुना। अभी आपने देखा आलिया हमजा और उज़्मा बुखारी के दरमियान टकराव, मगर असल हंगामा अभी बाकी है। अभी सीन बदल रहा है और मैदान में आ रहे हैं फैसल वाडा, जहां माहौल पहले से भी ज्यादा गर्म होने वाला है। नाज़रीन, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या सियासतदानों को इस तरह की गुफ्तगू जेब देती है? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर करें। मेरे ख्याल से उस घटिया लेवल पर आप ना जाए तो बेहतर ही है। उसके ऊपर मैं आपसे मशवरा नहीं मांगा, उस स्टे उठाने की बात करें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट, देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने आपको ना पहले कहा था कि कुछ इंडियंस का, एक हुक्मरान पार्टी का फेडरल मिनिस्टर, ये जब आप इस किस्म के लोग जो है ना, मुझे बात करने का मौका दीजिए, स्टेज के आगे पीछे चमचागिरी करते हैं, तो मैं आपकी इज्जत के लिए तो अचीव बैठ गया। मैंने आपको शो से पहले कहा था कि मैं इस किस्म के लोगों से उठना बैठना क्या बात करना ही पसंद नहीं करता। और इस खातून की क्रेडिबिलिटी प्लीज दिखाएं कि ये वो औरत है जिसने जरदारी पार्टी उस पार्टी के अंदर बैठकर नवाज शरीफ को अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, उसने जिसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिसने झूठ बोला हुआ है, इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? जिस औरत को जरदारी की पार्टी में बैठ के नवाज शरीफ को जो गद्दार कहती रही, वो आज उस पार्टी जो अपनी शादियां तक छुपाता है, जिसको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा है, वो बात मुझे क्रेडिबिलिटी बताएगा। लोगों से ना बिठाएं, क्या बात है? आगे पीछे कुछ नहीं है इनका सियासी स्टेक है, करो। तुम्हें चाइना के हीरो को बुलाया किसने? आपको इतना ख्याल रखना पड़ेगा इनका के लिए। ये थोड़ी कल सरदारी पार्टी के अंदर बैठे हुए आज नवाज शरीफ पार्टी बैठे, कभी हमारे को टिकट लेने आ जाएंगे, हम भी टिकट नहीं देंगे। इस किस्म के लोगों को इस किस्म के लेवल के लोगों के साथ बिठाएं। सर मुझे ना बिठाएगा, मैं तो आज आपकी इज्जत की बात है चुप कर गया। मैंने आपको आने से पहले बैठने से पहले कहा कि इस किस्म के लोगों के साथ मैं मुनाफिक नहीं हूं। मैंने आपको कहा था एक मेरी दरखास्त है आपसे कि खातून के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। तमीज़ का खातून करेगी तो खातून को ये थोड़ी है कि राइट है कि सर वो सामने बैठ जाए।
है। लिबास का चुनाव मुनासिब रहना चाहिए। जैसी बात करोगे वैसा आप जवाब एक लोगे। पार्टी में थी जिसमें आप नवाज शरीफ गद्दार कहती थी, आज आप कह रही हैं कि हम गद्दार हैं। तो भाई जिस औरत की सियासी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो जिसका कोई लेवल नहीं है, ना वो एमएन है ना वो एमपी है, उससे मुझे आप क्यों बता रहे हैं? और उससे आप मुझे बोल रहे हैं ये हमारी तकदीर के फैसले करें, ये हमारे मुस्तकबिल के फैसले करें। नाज़रीन, उस्मा बुखारी एक ख़ातून है और ख़ातून का अदब करना हर मुसलमान पर एक इखलाकी फ़र्ज़ है। तो नाज़रीन, मगर ख़ातून को भी चाहिए, एक औरत को भी चाहिए कि वो अपनी इज़्ज़त उसने खुद करवानी होती है। इस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू करना नामुनासिब है, और वो भी एक माशरे में जिस माशरे में इस्लाम को बहुत संजीदगी से लिया जाता है, दीन की चीज़ों को बहुत संजीदगी से लिया जाता है, उस माशरे में इस तरह की गुफ्तगू करना मेरे ख़्याल में नामुनासिब है और बल्कि गैर इखलाकी भी है। आपको नाज़रीन पता है कि फैसल वाडा जो थे वो पहले इमरान खान के बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार, बल्कि इमरान खान को अपना सियासी बाप कहते थे। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनको अपना रुख चेंज करना पड़ा और इमरान खान को खैर बात कहकर एक नई अपना जो है सियासी मुस्तकबिल इन्होंने बनाया। इनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो वही है जो शेख रशीद का था। नाज़रीन, हर दौर में एक स्टेबलिशमेंट का टॉक लाजमी होता है। इस वक्त भी जो फैसल वाडा खबरें देते हैं या फैसल वाडा जिस बलबूते पर सेनेटर बना है, वो सिर्फ आपको पता है कि वो स्टेबलिशमेंट है। जब स्टेबलिशमेंट का हाथ इन लोगों से उठ गया, ना इनकी हुकूमत रहेगी ना ये खुद रहेंगे। उसकी वजह ये है कि ये किसी की गोद पे बैठ कर आए हैं। जो किसी की गोद पर बैठता है या किसी विसाखियों पे चलता है, वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। जब उसका दिल चाहेगा वो अपनी विसाखियाँ वापस ले लेगा। हमेशा वही इंसान कामयाब होता है जो अपने पैरों पर खुद चले। आलिया हमज़ा एक दिलेर, एक बहादुर ख़ातून है। उसकी वजह ये है नाजरीन, इसकी वजह ये नहीं है कि वो इमरान खान की साथी हैं या पीटीआई में हैं। इसकी बिल्कुल ये वजह नहीं है, बल्कि ये वजह है कि उन्होंने जेल काटी। उन्होंने अपना किबला काबा चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं इमरान खान के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। आज भी आपको पता है कि आलिया हमज़ा जेल में, दोबारा आलिया हमज़ा को गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा दिया गया। सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो पीटीआई को पंजाब में मुतहर्रिक कर रही हैं और पंजाब में पीटीआई के लिए काम कर रही हैं। आपको पता है कि जितनी पाबंदियां, जितना यानी कि जुल्म जबरियत का दौर है, माशाल्लाह से भी ज़्यादा जो है ना सख्तियाँ हैं मीडिया पर। मीडिया पीटीआई इमरान खान को दिखा नहीं सकता। उस वक्त में पीटीआई के लिए काम करना एक ख़ातून के लिए बहुत यानी कि मुश्किल होता है, मगर फिर भी आलिया हमज़ा जो है वो काम कर रही हैं। दुआए नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ।